Hello everyone. Our today's topic in process design of uh, liquid extraction. So today's topic is how to find H2R or H2E from equivalent experiment. So H2R, that is the height of equivalent of overall for a refined phase, and height of uh, इक्विवेलेंट टू ओवरऑल एक्सट्रैक्ट फेज। तो ये दोनों के लिए H2R और H2E, ओके। सो दोनों के लिए हमें फाइंड करना है। टू फाइंड H2R फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट डेटा एट अ पिलट प्लांट और अ लैब स्केल, ओके। if we do for the experiment from the pilot plant or lab scale, one can use the following equation for the packed tower type extractor. So we here to find H2R is equal to superficial velocity of refined phase upon KRA equal to VR upon KRA, okay. So where KRA, it is overall mass transfer coefficient based on refined phase, okay, and KRA equal to kilomole of solute transferred per second upon volume of packing into delta C1m, ओके। तो यहाँ पे K1 KR की वैल्यू क्या है, दैट इज ओवरऑल मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट एंड बेस्ड अपॉन रेफिनेट फेज, ओके। एंड KRA क्या है, सो KR इज kilomole of solute that is transferred per second divided by volume of packing into delta C1m, और delta C1 क्या है, सो दैट इज logarithmic mean driving force, okay. And similar to find H2E, that is V, जहाँ पे VR था 1 मिनट, so similar to for height to equivalent overall for extract phase, similar to VE by KEA, okay, where KEA is kilomole of solute transferred per second upon volume of packing into delta C1m. So this is the procedure to find H2R and H2E. That's it. So another topic is supercritical extraction. So SC is a very important question for extraction. So in liquid extraction, तो supercritical extraction क्या है, okay? So in supercritical extraction, in liquid extraction, solvent like water, ethyl glycol, chloroform, hexane, ethyl acetate, etc. are contacted with feed mixture to separate the desired product. So इसमें क्या होता है कि ये जो सारे सॉल्वेंट है लिक्विड एक्सट्रैक्शन के अंदर, तो क्या होता है कि वो फीड मिक्सचर के साथ वो क्या करता है, कांटेक्ट विथ फीड मिक्सचर, दे आर इन कांटेक्ट विथ फीड मिक्सचर, एंड वो क्या करता है, सेपरेट द डिजायर प्रोडक्ट, एंड डिजायर प्रोडक्ट इज ट्रांसफर टू लिक्विड सॉल्वेंट, ओके, and this desired product is transferred to liquid solvent. So then desired product is to be separated by solvent, उसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर भी सॉल्वेंट रहता है. So in short, by liquid extraction from a given feed solution, one can might make a new solution. That means solvent plus solution. If separation of new solution is easier than the same of given solution, then extraction is called useful extraction, okay. So in simple extraction what happen कि हमारा जो लिक्विड एक्सट्रैक्शन है, तो उसमें क्या होता है कि जो एक्सट्रैक्शन फेज है उसके अंदर क्या होता है, सॉल्वेंट रहता है, और जो रेफिनेट फेज मिलता है दैट इज आवर प्रोडक्ट. सो that is called simple liquid extraction, okay. In separation of solute from solvent is normally done by distillation process, okay. So जो ये सॉल्यूट है उसमें से सॉल्वेंट को हम कैसे रिमूव करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से, और उसके बॉइलिंग टेम्परेचर से पे हम उसको रिमूव करते हैं. So it consumes large amount of energy. Also it is difficult to get 100% pure solute, okay. क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, सो उसके हिसाब से दैट इज दिस प्रोसेस इज वेरी हार्ड टू वेरी डिफिकल्ट टू गेट 100% pure solute. So absolutely free from solvent by distillation. In supercritical extraction,
सुपर क्रिटिकल फ्लूइड इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। जो हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, सॉल्वेंट के थ्रू यूज करते हैं। Up till now it has been discussed that the fluid can exist as a liquid or a gas, okay, but in addition to that a fluid can also exist as a supercritical fluid. So supercritical fluid is any fluid at a temperature higher than a critical temperature and at a pressure higher than the critical pressure. So supercritical fluid क्या है? So supercritical fluid is any fluid at temperature higher than critical temperature and pressure higher than critical pressure. Okay, so in figure 7.22 and 7.23 the phase diagram of carbon dioxide and water are given. So supercritical region of the both the component are shown in figure. So let me check. So as we see in figure, तो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, दैट इज द डायग्राम ऑफ, तो वो क्या है, डायग्राम ऑफ प्रेशर इन बार वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ दिया है। तो उसके अंदर फेज डायग्राम है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड ऑन डेटा कंटेंट थर्मोग्राफिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट फंडामेंटल, सो यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर नोट किया है और यहाँ पे टेम्परेचर डिनोट कर दिया है। सो एट दैट पॉइंट यहाँ से अगर ये क्या है, दैट इज -100 डिग्री सेल्सियस पर कोई ये हमारा सब्सटेंस है। ओके, तो एट दैट पॉइंट यहाँ पे जो ये पॉइंट है दैट इज ट्रिपल पॉइंट। तो ये ट्रिपल पॉइंट है कार्बन का। तो वो क्या होता है कि एट दैट पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट, तो वहाँ पे किसी भी सब्सटेंस का क्या, तो कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशंस का ये जो सब है वो क्या होता है, इट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है। सो दैट इज अवर सब्लिमेशन कर्व लाइक दैट, और ये है सब्लिमेशन। तो मतलब ये पॉइंट क्या है कि यहाँ से सब्लिमेशन पॉइंट है, सब्लिमेशन कर्व की, इट मीन्स कि सब्लिमेशन पहले क्या है कि जो सॉलिड है, सॉलिड का वेपराइजेशन हो रहा है डायरेक्टली इनटू गैस और वेपर। सो इसके बीच लिक्विड फेज वो क्या करेगा, कंज्यूम नहीं करेगा, डायरेक्ट सॉलिड में से गैस फेज अकर्स होता है। सो इट्स कॉल्ड सब्लिमेशन। सो इट इज सब्लिमेशन कर्व। जैसे ही टेम्परेचर क्या बढ़ेगा तो दैट इज कर्व ऑल्सो बी लाइक दैट। देन एट दैट पॉइंट इट इज ट्रिपल पॉइंट, एंड देन यहाँ से जो स्ट्रेट कर्व है वो क्या होगा, दैट इज फॉर द सॉलिड रीजन, दिस इज द लिक्विड रीजन, सॉलिड ऊपर का लिक्विड, और ये है वेपर रीजन। ओके, सो ये सॉलिड रीजन है बराबर, ये जो पार्ट, सो दैट इज अ मेल्टिंग कर्व, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये पार्ट है दैट इज वेपराइजेशन कर्व है। ओके, ए वेपराइजेशन कर्व है। ओके, एंड एट दैट पॉइंट, तो ये पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट इन एंड ये जो पूरा रीजन है। ओके, तो ये पूरा रीजन क्या हो जाएगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर का एट दैट पॉइंट पे। सो इट इज अ सुपर क्रिटिकल रीजन। ओके, तो ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है कि यहाँ से एट दैट पॉइंट इसके ऊपर ये जो सब्सटेंस है उसका वेपराइजेशन रेट क्या हो जाएगा, दैट इज वेरी फास्ट हो जाएगा, और एट दैट पॉइंट कि उसका वेपराइजेशन एकदम फास्ट हो जाएगा, और एट दैट पॉइंट जो ये लिक्विड है और वेपर है दोनों की डेंसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। सो इट्स कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। ओके, so that is the data of liquid region, solid region and vaporization rate for vapor region के लिए। ओके, तो सिमिलर टू यहाँ पे दूसरा प्लॉट ग्राफ प्लॉट किया गया है, वो है वाटर का। जो पहले हमने देखा था वो कार्बन का था, तो ये फेज डायग्राम है दैट इज फॉर वाटर। सो सिमिलर टू फॉर वाटर -100 डिग्री सेल्सियस, सो सब्लिमेशन कर्व इज हियर इंडिकेटेड बाय, सो हियर इज ट्रिपल पॉइंट। ओके, so 0.01 degree Celsius, or it can be 0.06 bar, at where the temperature, pressure and compositions of at that point are in equilibrium point. So at that point start if we increasing pressure,
Okay, so the graph will be like this. So it in solid region, if we are increasing also temperature, so the temperature increase करते हुए ये जो कर्व होगा वो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा. सो इट्स कॉल्ड वेपराइजेशन कर्व एंड एट दैट पॉइंट लिक्विड रीजन में हो जाएगा. ओके, और ये क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन एंड वेपर रीजन. देन उसके बाद जो ये क्रिटिकल पॉइंट है वो वाटर के लिए जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है 374.15 डिग्री सेल्सियस एंड ये सुपर क्रिटिकल रीजियम है. सो एट दैट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वाटर का जो वाटर में से जो वेपराइजेशन रेट है वो रैपिड हो जाएगा एंड एट दैट पॉइंट ऑल्सो द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड वेपर पॉइंट आर नियर अबाउट सेम. ओके, so now the properties of supercritical fluid solvents. Okay, so now the second topic is properties of supercritical fluid solvents. Okay, supercritical fluid में हम solvents को use करते हैं जो उसकी property. In supercritical state, density of a fluid is just like a liquid density and hence solvent power for extraction is also equivalent to liquid solvent. In supercritical regime, density of the fluid is sensitively changing with the pressure and slightly changing in the pressure create the dynamic changing density. That means कि क्या है कि अगर हम क्या करते हैं कि इन सुपरक्रिटिकल एक्सट्रैक्शन तो उसके अंदर ये जो फ्लूइड है वो क्या होता है, लाइक लिक्विड डेंसिटी एंड ओके फ्लूइड इज जस्ट लाइक लिक्विड डेंसिटी के जैसा ही होता है. एंड सॉल्वेंट पावर फॉर द एक्सट्रैक्शन इज आल्सो इक्विवेलेंट टू लिक्विड सॉल्वेंट. ओके, जो सॉल्वेंट का एक्सट्रैक्शन है वो लिक्विड सॉल्वेंट के जैसा ही है. एंड सुपर क्रिटिकल रीजन के अंदर जो डेंसिटी है फ्लूइड की वो क्या होनी चाहिए, एकदम वो सेंसिटिव होती है. वो क्या होती है कि प्रेशर जरा सा भी प्रेशर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कि ड्रामेटिक चेंज इन डेंसिटी, तो कि डेंसिटी के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस आएगा. सेकेंड इज विस्कोसिटी ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड सॉल्वेंट्स आर इक्विवेलेंट टू विस्कोसिटी ऑफ गैस. सो इसकी विस्कोसिटी के कंपेयर टू होनी चाहिए विस्कोसिटी ऑफ गैसेस के कंपेयर में होनी चाहिए. हेंस दे कैन कंज्यूम लेस पावर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. सो वो क्या करेंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए मतलब क्या करेंगे, वो कम पावर रिक्वायरमेंट लेंगे. एंड ऑल्सो दे प्रोवाइड लेजर रेसिस्टेंस टू हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर. सो बेसिकली हमें किससे फायदा होगा, हीट एज वेल एज मास ट्रांसफर करने के लिए हमको फायदा होगा. नेक्स्ट इज molecular diffusivity. Molecular diffusivities of supercritical fluid solvents are intermediate to liquid and gases. तो वो किसके बीच की होनी चाहिए, intermediate of liquid and gas की. So DL is in the order of liquid की density in the order of C into 10 raised to minus 9 and meter square per second, where DL is the diffusivity of liquid and dg is the diffusivity of gas. So it's in order of C raised to 10 raised to minus 5 meter square per second. Okay, now next is what is the advantages and disadvantages of supercritical fluid solvent. तो उसके फायदे हमें क्या है, if we are using supercritical fluid solvent are easily and completely separated from extract प्रोडक्ट्स. मतलब कि जो हमारा एक्सट्रैक्ट फेज है उसके अंदर से हम क्या 100% प्योर हम प्रोडक्ट को सेपरेट कर सकते हैं. दिस मीन्स सुपर क्रिटिकल सॉल्वेंट गिव्स द प्रोडक्ट नियरली अबाउट द 100% फ्री फ्रॉम सॉल्वेंट. सो उसके अंदर से जो भी हमें एक्सट्रैक्ट फेज मिलेगा तो वो क्या मिलेगा, 100% सॉल्वेंट फ्री एक्सट्रैक्ट फेज. दैट इज अवर प्रोडक्ट. ओके, सेकंड थिंग इज रिडक्शन इन प्रेशर or increase in temperature separate the supercritical fluid solvent from extract product. अगर हम रिडक्शन प्रेशर के अंदर हम प्रेशर कम करते हैं और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इससे क्या हो जाएगा कि जो ये सुपरक्रिटिकल फ्लूइड सॉल्वेंट है वो किसमें से सेपरेट हो जाएगा, हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर से. Hence they are require lesser energy for the separation. So इसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमें कम से कम एनर्जी हमको चाहिए.
So it is near about 100% recovery of solvent from extracted product and possible with low cost and compared to liquid extraction with the liquid solvent. So लिक्विड सॉल्वेंट के मुकाबले सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन के अंदर हमें क्या मिलता है कि 100% रिकवरी ऑफ सॉल्वेंट की मिलती है, वो भी लोअर कॉस्ट पे. सो ये इसके फायदे हैं. सेकंड थिंग इज सुपर क्रिटिकल सॉल्वेंट हैज वेरी लो विस्कोसिटी एंड हाई डिफ्यूजिविटी. जो ये सॉल्वेंट है तो उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, वेरी लो होती है और उसकी डिफ्यूजिविटी बहुत होती है compared to liquid solvent. So it provide laser resistance to mass transfer and also it's provide laser friction during transportation. So इसकी वजह से जो mass transfer process operation हो रहा है तो क्या हो जाएगा, एकदम easy हो जाएगा and that is very advantageous. Supercritical fluid solvent provide very high value of selectivity. So जैसे हमने choice of solvent की जो selectivity है हमने देखा था तो उसके अंदर उसकी सिलेक्टिविटी हमें पता चल जाएगी एंड कंपेयर टू कन्वेंशनल लिक्विड सॉल्वेंट. जो लिक्विड सॉल्वेंट हम ऐड करते हैं उनके मुकाबले ये हो जाएगी. सो सिलेक्टिविटी अल्फा को कैसे डिनोट कर सकते हैं, उसको अल्फा से डिनोट कर सकते हैं एंड हाउ इट कैन बी फाइंड. सो इट इज फाइंड बाय मास ऑफ सॉल्यूट ऑब्लिक मास ऑफ नॉन सॉल्यूट कंपोनेंट ऑफ द एक्सट्रैक्ट फेज divided by mass of solute divided by mass of non-solute component in raffinate phase. Okay, so do this. Okay, so using this, okay, alpha is equal to mass of that is solute C divided by A upon into extract phase and that is raffinate phase. For extraction, it is possible only if alpha is greater than 1. ओके, एक्सट्रैक्शन सुपरक्रिटिकल एक्सट्रैक्शन कभी पॉसिबल है कि हमारा जो सॉल्वेंट है उसकी सिलेक्टिविटी क्या होनी चाहिए, मोर देन 1. इफ अल्फा इज मच ग्रेटर देन 1 इट इम्प्लाइज लेसर नंबर ऑफ थियोरेटिकल स्टेज आर रिक्वायर्ड फॉर द डिजायर्ड सेपरेशन. दैट मीन्स हमने पहले ही बोला था, पहले ही पढ़ा कि क्या कि जैसे हमारी सिलेक्टिविटी है, जो सॉल्वेंट हमारा बेस्ट है तो हमें जो डिजायर्ड सेपरेशन के लिए जो नंबर ऑफ थियोरेटिकल स्टेज चाहिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ओके, सो कॉन्सिक्वेंटली दे आर रिक्वायर लेजर हाइट ऑफ एक्सट्रैक्टर एज कंपेयर टू कन्वेंशनल लिक्विड सॉल्वेंट. Next one, with a common SCFS like a CO2 solvent recovery is possible at a room temperature or at a temperature close to the room temperature. Okay, तो इसके अंदर जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं तो उसकी रिकवरी मेन एडवांटेजेस यही है कि उसकी रिकवरी हम रूम टेम्परेचर पे ही कर सकते हैं. ओके, और नियर टू रूम टेम्परेचर पे कर सकते हैं. वाइल द सेम इज नॉट पॉसिबल विथ कन्वेंशनल लिक्विड सॉल्वेंट. ओके, सो कॉमन सुपर क्रिटिकल fluid solvent like CO2 is easily available with relatively low price and compared to conventional liquid solid. So conventional liquid solid के मुकाबले ये जो हमारा solvent है वो क्या है, easily available है in market. And HCFS like CO2, dry CO2 is non-corrosive and not toxic in nature. So CO2 is based supercritical fluid. Okay, and it can be used as a सुपरक्रिटिकल फ्लूइड सॉल्वेंट. ओके, सो जैसे एडवांटेजेस है उसी तरह उसके डिसएडवांटेजेस भी यही है. एडवांटेजेस ये है कि उसके अंदर क्या इट नॉट बी फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट दैट सुपरक्रिटिकल फ्लूइड्स प्रोवाइड पुअर वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट फॉर एक्सट्रैक्शन एज कंपेयर टू कन्वेंशनल लिक्विड सॉल्वेंट. सो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं पुअर वैल्यू के हिसाब से तो वी कैन नॉट फाइंड द इजीली सुपर क्रिटिकल फ्लूइड. तो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, दैट इज मास फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इन एक्सट्रैक्ट फेज एट इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय मास फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इन अ रैफिनेट फेज एट अ इक्विलिब्रियम पॉइंट. सो ये दोनों तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं. Okay, hence the solvent or a feed ratio required with supercritical solvent it is very much higher than conventional liquid process. तो इसके अंदर जो भी रेशियो है किसका, सॉल्वेंट टू फीड रेशियो, तो ये क्या है कि वो बहुत ज्यादा है लिक्विड सॉल्वेंट के मुकाबले.
except the few solvent like CO2 and other solvent like hexane, ethylene glycol, etc. It is very difficult to achieve the supercritical state of fluid due to the practical limitation. Okay, जो practical limitation की वजह से हम उसको अचीव नहीं कर सकते हैं. CO2 है, ये जो हेक्सेन है, इथिलीन ग्लाइकोल है. ओके, सो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट इज नैरो फॉर सुपरक्रिटिकल फ्लूइड सॉल्वेंट. तो ये जो सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन है तो उसके लिए जो भी सॉल्वेंट रिक्वायरमेंट है वो क्या है, नियर अप टू बहुत ही कम है. सो सर्टेन SCFS आर फ्लेमेबल लाइक प्रोपेन, ब्यूटेन, एक्सट्रेक्टा. तो ये जो कंपोनेंट है, ओके, तो ये क्या है, ये एक फ्लेमेबल कंपोनेंट है. सो दे इक्वेट सेफ्टी मेजरमेंट आर रिक्वायर टू डिजाइन. ओके, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी सेफ्टी को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा. जैसे ही उसको यूज करते हैं उससे पहले हमको ये उसको ये देखना पड़ेगा. सो दैट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सुपरक्रिटिकल एक्सट्रैक्टर फ्लूइड.